Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss important news from the Hindu edition of 19 December 2022. आज के इस न्यूज़पेपर एडिशन में ही considering that ALEC and PLAT has been concluded, so many of the viewers who are watching this, they may be going to attempt the paper next year. So considering the requirement for CLAT and ALEC, so I will also be discussing how to study the newspaper. न्यूज़पेपर में से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें कैसे हम सिलेक्ट करते हैं. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. अलॉन्ग विद दैट, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज रिलेटेड विद साइंस एंड टेक से रिलेटेड है कुछ टॉपिक्स. देन डिफेंस से इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, वी विल सी दैट ऑल्सो. अलॉन्ग विद दैट वी विल सी जीएसटी काउंसिल विच हैज़ कंक्लूडेड रिसेंटली. They are going to decriminalize certain sections under the Central GST Act. So we are going to discuss that also. Along with that, आज हम environment related पढ़ेंगे COP16. Now this COP16 is not to UNFCCC. This is related to Convention on Biological Diversity. इसके बारे में भी हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. So let's start with the news. The first is FIFA World Cup itself. So FIFA World Cup. So Messi is Argentina on top of the world. So Argentina has won the FIFA World Cup 2022, which was held in Qatar. Now they were playing against France and they have won this World Cup. और यहाँ पे जो स्टार थे जो बहुत फोकस में थे वो है लियोनेल मेसी and his team. Okay, so they have won a 4-2 victory in a shootout after being tied 3-3 at the end of extra time. The next is citizenship part to be eased for 6 minority group from 3 nations. तो यहाँ पे the Union Home Ministry is coming up with a new rule where citizenship portal is going to accept passports and visas with expired validity. Okay. सो यहाँ पे देखिए ध्यान ये देना है कि होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया है इन दिसंबर 2021 itself that from 2018 to 2021 the government has received 8,244 citizenship applications from the minority groups and they have granted citizenship to 3,117 applicants. ओके अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रूल क्या है, current rule क्या है, that the portal where the citizenship applications are accepted, it accepts expired passport as supporting documents only for those Hindu and Sikh applicants from Pakistan and Afghanistan who entered India before December 31, 2009. ओके तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, अब वहाँ पे क्या नया रूल आने वाला है that they are going to ease the grant of citizenship to members of 6 minority communities. ये 6 minority communities कौन कौन से हैं? So they are Hindus, Sikhs, Parsis, Christians, Buddhists, Jains, and from 3 countries, that is Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. They will be allowed to produce expired passports, visas as a supporting document to be granted the citizenship of India. So यहाँ पे क्या होगा कि now citizenship portal is going to accept passports and visas with expired validity as supporting documents to process citizenship application of Hindus, Sikhs, Parsis, Christians, Buddhists, Jains from these 3 countries. Now editorials we will be coming at the last. Let's go to text and context. Decriminalization of offenses under GST. तो 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी विच वॉज हेल्ड ऑन December 17. सो यहाँ पे जो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं. सो द चेयरमैन ऑफ द 48 जीएसटी काउंसिल वॉज निर्मला सीतारमन and it has recommended to decriminalize certain offenses under section 132 of Central Goods and Services Act 2017. Okay, now ये सबसे important recommendation है. कुछ जो और important recommendations हैं that is related with facilitation of trade. Then include an increased threshold of the amount of tax for prosecution, reducing the compounding amount in GST. These are some of the provisions. अब जब GST implement हुआ था, so some of the factual information related with GST, goods and services tax. तो GST कब से introduce हुआ है इंडिया में? That is 1st July 2017. ठीक है. Now GST was introduced by which amendment to the Constitution? So it is 101st amendment to the कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कुछ दिन पहले हम NJIC का कर रहे थे, नेशनल जुडिशियल
Appointment Commission that was introduced by 99th Constitutional Amendment Act, but GST has been introduced by 101st Constitutional Amendment Act. Now जब से GST implement हुआ है, that is 1st July 2017, there has been a significant increase in tax evasions. Okay, तो tax evasion has been a problem, मतलब compliance जो है वो कम है, तो compliance को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अब टैक्स अथॉरिटीज क्या करते हैं, टैक्स इविजन को कैसे पकड़ते हैं? दे यूज टेक्नोलॉजी एंड डेटा फ्रॉम ई वे बिल्स एंड जीएसटी रिटर्न्स टू चेक इवेजन. अब जो जीएसटी लॉ है, इट इटसेल्फ एस्टेब्लिशेस द पेनाल्टीज एंड गाइडलाइंस दैट टैक्स पेयर्स मस्ट अबाइड. ओके, अब यहाँ पे जो जीएसटी लॉ है, इट प्रोवाइड्स फॉर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनाल्टीज. ओके फाइन. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक तो है द डिपार्टमेंट अथॉरिटीज, दे हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज मॉनेटरी फाइन्स and the seizure of goods for violating some of the provisions of GST. The second is criminal penalties, which include imprisonment and fines, which are also provided by GST law, but they can be avoided only by a criminal code following a prosecution. उसके बाद अगर हम देखेंगे that GST में बहुत सारे sections हैं, तो section 122 to 131 of Central GST Act, it contains provisions related to penalties, यहाँ पे सिर्फ penalties लगेंगे. फिर जो सेक्शन 132 टू 138 है, इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग, जहाँ पे गिरफ्तारियां हो सकती हैं. उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रोसिक्यूशन और कंपाउंडिंग में, तो यहाँ पे भी ऑफेंसेस जो है, दोज आर विच आर कॉग्निजेबल एंड बेलेबल एंड विच आर नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल से पूरा समझाया हुआ है दैट अंडर द CGST एक्ट, इफ अ ग्रुप ऑफ 2 persons और मोर एग्री टू कमिट एन इलीगल एक्ट लाइक टैक्स इवेजन, फ्रॉड एक्सेट्रा, दे आर हेल्ड लायबल अंडर द एक्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ओके, ये CGST कहता है. तो यहाँ पे जो सेक्शन 120A है इंडियन पेनल कोड का, इट डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. सेक्शन 120B डील्स विद पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. And section 46 of CRPC deals with how arrest is made. Okay, उसके बाद अगर section 69 देखेंगे आप CGST Act का, it provides the power to arrest a person by an order of a commissioner when he believes that a person has committed any offence under section 132. Okay, so यहाँ पे अगर हम देखेंगे section 67 और section 165 of CRPC, they deal with the provisions related to police and magistrates, how the arrest is done, how the searches are done and how the summons are given. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे that section 67 है CGST Acts का, that defines that only an officer not below the rank of joint commissioner can authorize in writing an inspection or search. So these are some of the examples. अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब GST इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो हमने पैनल प्रोविजंस जहाँ पे अरेस्ट हो सकता है, ऐसा हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया था? तो यहाँ पे एक डिबेट ये चल रहा था कि 2 साइड्स थे. एक तो नहीं होना चाहिए पैनल प्रोविजन. सेकंड कि अगर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करता है, सपोज कि अ मैन डिफ्रॉड्स द गवर्नमेंट विद ₹100 करोड़, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फाइन. तो उस वक्त ये देखा गया कि अगर 2 करोड़ तक का अगर फ्रॉड है, ठीक है, तो नो अरेस्ट. बट अगर उसके ऊपर का कोई फ्रॉड करता है देन अरेस्ट. तो ये 2 करोड़ का जो सीलिंग था उसको बाद में बढ़ा के 5 करोड़ रुपीज़ का कर दिया गया. ओके, नाउ कमिंग टू दी 48 GST काउंसिल मीटिंग विच हैज़ रिकमेंडेड to decriminalize the GST offenses such as raising the minimum threshold of tax amount for launching prosecution under GST from ₹1 crore to 2 crore. Then इसमें बस एक एक्सेप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शन क्या है? इशुएंस ऑफ फ्रॉड इनवॉइसेस. ठीक है, ऐसा इनवॉइसेस विदाउट सप्लाइंग गुड्स अगर और सर्विसेज अगर आप गवर्नमेंट को इनवॉइस अगर देते हो, तो दैट विल बी, उसका कोई भी अमाउंट हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ के नीचे क्यों ना हो, तो वहाँ पे जो है कंपाउंडिंग सेंटेंसेस लगेंगे. उसके बाद रेड्यूसिंग द कंपाउंडिंग अमाउंट फ्रॉम द 50 to 150% to 25 to 100%, and then decriminalizing certain offenses under section 132 of the CGST Act. Now what will be the impact of decriminalization? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो GST जो है, इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. फाइन. तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इम्पोजिंग पैनल प्रोविजंस, अगर हम पैनल प्रोविजंस इम्पोज करते हैं, तो it is in an unambiguous ecosystem, it significantly alters how business perceive risk and uncertainty, which directly impact the ease of doing business.
Then the next is that investors may be discouraged by the fear of criminal sanctions in small, trivial and petty matters even before their engagement in any business activity or investment. मतलब कि जो डीक्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ और डिस्कशंस हुए हैं एट द 48 जीएसटी काउंसिल। सो टू मेजर रिकमेंडेशंस इंक्लूड रिफंडिंग द अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। पहले जो पर्सन्स जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उनको रिफंड लेना मुश्किल होता था। नाउ इट ऑल्सो विल ऑल्सो इंक्लूड रिफंडिंग द अनरजिस्टर्ड पर्सन्स एंड फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। ओके, अब हम अनरजिस्टर्ड बायर्स पे आते हैं। देयर वाज नो प्रोसीजर फॉर क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स बोर्न बाय अनरजिस्टर्ड बायर्स इन केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट है, हाउस है, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। ओके, इन सब में दीज आर अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनको रिफंड नहीं मिलता था। द नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज नेक्स्ट। तो देन सेकंड इज ई कॉमर्स ऑपरेशंस। सो द जीएसटी काउंसिल जो पहली मीटिंग हुई थी 47 का, इट ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर अलाउइंग अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स एंड कंपटीशन टैक्स पेयर्स टू मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। Okay, so the council has approved the amendments in the GST Act and GST rules for that. The next is, अब इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, जो डिक्रिमिनलाइजेशन है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट इन जीएसटी केसेस विल ओनली बी इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस ऑफ हार्ड हैबिचुअल डेलिब्रेट डिफॉल्टर्स एंड ब्लेटेंट fraudulent practices. The next is deep fake technology. And now China is planning to regulate it. We are going to see that how European Union, US, they are also regulating it. Okay, so यहाँ पे न्यूज़ ये है कि साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, विच इज कंट्री साइबर स्पेस वॉचडॉग, they are going to come out with new regulations effective from Jan 10 or January 10 to restrict the use of deep synthesis technology and to curb disinformation. So now what is deep fake technologies? Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका डेफिनेशन ऊपर भी दिया हुआ है और नीचे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम नीचे वाले को कर लेते हैं, ये ज़्यादा क्लियर है। डीप फेक्स दे आर कंपाइलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इमेजेस एंड ऑडियो पुट टुगेदर विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जैसे फेस किसी और का, वॉइस किसी और का, इस तरीके से। So they are done to spread misinformation and to replace a real person's appearance, voice or both with similar artificial likeness or voices. So it can create people who do not exist and it can fake real people saying and doing things that they did not say or do. ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि फेस किसी और का, वॉइस किसी और का, इस तरीके से इसमें जो है डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, किसी को बदनाम किया जा सकता है, किसी का मिसयूज हो सकता है। फाइन, यहाँ पे एक रिपोर्ट है दैट द टर्म डीप फेक इट ओरिजिनेटेड इन 2017। वहाँ पे एक एनोनिमस रेडिट यूज़र था, उसने अपने आप को डीप फेक बुलाया था। एंड दिस यूज़र मैनिपुलेटेड गूगल्स ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एंड पोस्ट पोर्नोग्राफिक वीडियोस। तो इस तरीके का मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, अब आज के दिन में डीप फेक टेक्नोलॉजीज के यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? तो सी, डीप फेक टेक्नोलॉजी इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड फॉर nefarious purposes like scam, hoaxes, celebrity pornography, election manipulation, social engineering, automated disinformation attacks, identity theft, financial fraud. नाउ पास्ट में अगर आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी को पास्ट में यूज़ किया गया है टू इम्पर्सोनेट, टू कॉपी यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मार्क जुकरबर्ग, टॉम क्रूज एक्सेट्रा। तो जो चाइना का जो न्यू रूल है, इट इज गोइंग टू कम्बैट दिस डीप फेक फॉर स्प्रेडिंग दिस इंफॉर्मेशन। नाउ इफ यू विल जस्ट सी, अब हमारे यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि यूरोपियन यूनियन का एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन थ्रू डीप फेक्स। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लाइक गूगल, मेटा, ट्विटर, दे विल टेक मेजर्स इन काउंटरिंग डीप फेक्स एंड फेक अकाउंट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। Now it was introduced in 2018, that is code of practice on disinformation, that brought together for the first time worldwide industry players to commit to counter disinformation. Now the next is what USA is doing. So USA in July last year has introduced Deepfake Task Force Act to assist the Department of Homeland Security to counter deepfake technology. Then some states in US such as California and Texas, they have passed laws that criminalize the publishing and distributing of deepfake videos. Now
Canada, which is a leader in AI research, cutting edge AI research. So Canada, it is a member of leader in many related multilateral initiatives like जो डीप फेक से रिलेटेड है. इट इज पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस, नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंडिया में देयर इज नो लीगल रूल्स अगेंस्ट यूजिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी फॉर नाउ. Okay, but there are various provisions of various others law like copyright violation, defamation, cyber felonies which can be used related to these things. The next is missile destroyer INS Mormugao commissioned into the Indian Navy. So यहाँ पे हम देखेंगे INS Mormugao which is the part of project 15B. ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर 4 शिप डेवलप होने हैं जिसमें से 2 को इंडियन नेवी में कमीशन किया जा चुका है. एक तो INS विशाखापट्टनम है, दूसरा INS मोरमुगांव है. The other two, INS Imphal and Surat, they are in the various stages of outputting and trial. अब ये जो INS मोरमुगांव है which is built under project 15, okay, so it is propelled by 4 powerful gas turbines capable of achieving speed in excess of 30 knots. Okay, then the next is that they have reduced radar cross section. Now what is the meaning of reduced radar cross section? The meaning of reduced radar cross section is that it is very difficult for radar or enemy radar to detect them. Then the other things are that these ships, they are equipped with BrahMos supersonic cruise missiles and long range surface to air missiles. Then it includes surface to surface and surface to air missiles, torpedo tube launchers, anti-submarine rocket launchers, super rapid gun mount. Okay, these are some of the technology equipped in INS Mormugao. The next is that it has 75% indigenous content. The next is one liner. Recently, which state has made Aadhaar a must for all its schemes? So it is Tamil Nadu. So Tamil Nadu government has made Aadhaar mandatory for all the beneficiaries to receive benefits of state government schemes. The next is North East Council. तो यहाँ पे देखेंगे हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे. सो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, इसका गोल्डन जुबली बन रहा है कहाँ पे? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में. ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मोटो है फॉर नॉर्थ ईस्ट, दैट इज एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट. तो यहाँ पे जो स्पेंडिंग है इस रीजन में दैट इज ₹7 लाख करोड़. नाउ कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, so it was established in 1971 and inaugurated in 1972. The next important point is it is a nodal agency for economic and social development in Northeast region comprising 8 states. Now which are these 8 states? So Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, then you have Manipur, then Mizoram, then you have Tripura, and the next one is Meghalaya. Okay. नाउ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. नॉर्थ ईस्ट एक लाइन में यहाँ पे बताया है दैट दे आर द गेटवे फॉर ट्रेड एंड अदर टाइज विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. जिससे कि अगर आप देखेंगे कि जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, वी हैव एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो वन ऑफ द फीचर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज टू डेवलप कनेक्टिविटी. ओके, टू डेवलप कनेक्टिविटी बिटवीन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड एशियन कंट्रीज. ओके, दिस इज वन ऑफ द feature of Act East policy. The next is that during the last budget, there was the announcement of PM Divine Scheme development in Northeast region. So this scheme is going to focus on infrastructure development and livelihood opportunities in Northeast region. Okay, अब यहाँ पे हम देखेंगे. So it also focuses on improving digital connectivity in Northeast by increasing the optical fiber network, then rolling out of 5G infrastructure, then infrastructure projects related to highway developments, that 50% increase in the length of national highways in region since 2014. Then railway connectivity, the idea is to connect each and every 8 states with railway. Then focus on horticultural projects, horticulture, जैसे कि बी कीपिंग हो गया, ठीक है ना, बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर. देन हिंदी लाइब्रेरीज फॉर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड असम. Then if we will just see that who is the chairperson of North East Council. So the Union Home Minister is the ex-officio chairperson of the North East Council. The next is one liner again. India's Sargam Kaushal wins Miss World 2022 title. So Sargam Kaushal has been named Miss World 2022, beating contestants from 63 countries to bring back the title back to India after 21 years. Okay, so if we will just see,
नेक्स्ट न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया पुशेस फॉर न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड। तो अब आपको समझना पड़ेगा रियो अर्थ समिट को। इस न्यूज़ को समझने के लिए दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, रियो अर्थ समिट एंड CBDR। सो देयर वाज रियो अर्थ समिट इन 1992। ओके, रियो अर्थ समिट इन 1992। इसके कुछ आउटकम्स थे। एक तो था यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसी से निकला है आपका कुछ चीज़ें, क्योटो प्रोटोकॉल, ये UNFCCC के पार्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया। देन ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड। देन जो अभी COP27 में अनाउंस हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, ये भी अनाउंस हुआ था, लॉस एंड डैमेज फंड। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ UNFCCC। एक और है दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, और एक और था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। ओके, सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक। तो इसमें से हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाले की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो इसका COP15 चल रहा है, ठीक है। जो COP27 हमने पढ़ा था नवंबर में, वो UNFCCC से रिलेटेड है, और ये COP15 जो है वो CBD से रिलेटेड है। उसके बाद रियो अर्थ समिट में अगर हम देखेंगे 7th प्रिंसिपल ऑफ रियो डिक्लेरेशन। सो रियो अर्थ समिट में एक रियो डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ था, रियो डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे जो इसका 7th प्रिंसिपल है, ठीक है, तो इट इज CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 7th प्रिंसिपल ऑफ रियो डिक्लेरेशन CBDR। इसका मतलब कि क्लाइमेट चेंज या टू रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, बट डेवलप्ड कंट्री का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स अबाउट CBDR। तो दिस इज द पार्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। और यहीं से फ्लो होता है एक टॉपिक विच इज कॉल्ड एज क्लाइमेट फाइनेंस। It means that developed country should provide finance to developing countries for adaptation and mitigation. So this is the same thing which is being propounded by our Union Environment Minister Bhupendra Yadav at COP15. They are talking कि अगर हम बात कर रहे हैं post 2020 global biodiversity framework to set new goals and to halt the reverse of biodiversity loss, then it should be based on the principle of CBDR. Okay, and the finance related target should be based on CBDR. उसके बाद द सेकेंड पॉइंट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। सो जो UNFCCC का जो पूरा फाइनेंसिंग है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड देखता है, बट उसके बाद जो बाकी के जो कन्वेंशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना, UNFCCC का खुद और COP15 का खुद, दैट इज कमिंग अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। उनका फाइनेंस जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से आता है, बट इट इज़ नॉट what you can say, this fund is not enough to solve the problem of developing countries like India. उसके बाद COP15 में एक बात हो रही है जिसको इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रहा है, दैट इज एलिमिनेटिंग सब्सिडीज दैट आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, सच एज सब्सिडीज फॉर फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज बाय एटलीस्ट $500 billion एनुअली, एंड यूजिंग दिस मनी फॉर बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन। मतलब जो कंट्रीज़ हैं वो कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं कि एक सोर्स ऑफ फंड ये हो सकता है कि हम लोग सब्सिडी देते हैं कोल को, थर्मल पावर प्लांट्स को, फॉसिल फ्यूल्स को, एग्रीकल्चर पे, वो सब्सिडी ना देके वो फंड हमें यूज़ करना चाहिए फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो नाउ ओवर हियर द इंडियन स्टैंड इज दैट this is not sustainable for India because India is a developing country and it has great responsibility for eradicating poverty and to ensure sustainable development. So India does not agree on reducing the agriculture related subsidy and redirecting the savings for biodiversity conservation because India has a lot of other national priorities. Now the next is factual information कि ये COP15 कहाँ पे हो रहा है, that is it is happening in Montreal in Canada. The next is लोलापालूजा इफेक्ट। लोलापालूजा इफेक्ट क्या होता है ये समझना है। ये हम बात कर रहे हैं मेटा के बारे में। मेटा
which owns Facebook, Instagram and WhatsApp, ठीक है ना। तो इसका अगर आप देखेंगे तो दे हैव डिवैल्यूएशन हो चुका है। इफ यू विल जस्ट सी देयर स्टॉक्स, ओके, दे हैव फॉल 70 to 75%, okay, in a matter of only 15 months. So that is basically related to advertising, ठीक है ना। कि जब कोविड-19 हुआ तो एडवर्टाइजिंग बहुत से लोग जो हैं, पहले तो सिर्फ सर्विसेज का एडवर्टाइजिंग होता था फेसबुक पे, बट गुड्स के भी होने लगे फेसबुक पे, तो रेवेन्यू उनका बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, ठीक है। बट जैसे ही स्टेबलाइज हुआ, जैसे चीज़ें नॉर्मल हुई और जैसे ही बाकी कॉम्पिटिटर्स आ गए फेसबुक के, जैसे टिकटॉक, तो इसका रेवेन्यू फॉल होने लगा, ठीक है। सो दिस हैज़ लेड टू दिस सिचुएशन दैट लॉस इन स्टॉक वैल्यू ऑफ 75%। तो यहाँ पे एक बात हो रही है दैट इज कॉल्ड एज लोलापलूजा इफेक्ट। लोलापलूजा इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सिंपल कहता है कि 2 + 2 4 होता है, बट लोलापलूजा इफेक्ट में क्या है कि देयर इज नो एडिशन, ओके। यहाँ पे क्या होता है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस अ मैमोथ चेंज। फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू हैव ओनली 2, so it is 2. If you have 2 raised to 2, then it is 4. If you have 2 raised to 3, then it is 8. If you have 2 raised to 4, it is 16. तो इस लेवल का चेंज आता है, ठीक है ना। इट इज नॉट अ मियर एडिशन, इट विल नॉट बी 2 + 2 4 और 4 + 2 6। द फैक्टर्स विल कम एंड दे विल मेक मैमोथ चेंजेस। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, फाइन। So Lollapalooza effect, it means confluence of factors acting together that can lead to either large positive or negative results. तो यहाँ पे एक ही, यहाँ पे forces they combine, they don't add, and each force builds off and strengthens the other, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप दो फ्रेंड हो, ठीक है ना, एक्स एंड वाई, आप दूसरे क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप अलग ही अलग हो, ठीक है। तो अगर आप लोग को एक साथ बैठा दिया जाए, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप लोग मिलके टीचर का हर आंसर का क्वेश्चन कर रहे हो, साथ साथ में आप नोटोरियस भी हो, ब्रेक में आप मस्ती भी खूब कर रहे हो, ओके, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट। द नेक्स्ट इज इन फ्रेश अटैक रशिया ट्रूप्स टारगेट हार्ट ऑफ खैरसन सिटी। सो यहाँ पे अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस विच इज नॉट सीइंग एनी sign of subsiding। तो अगेन रशिया ट्रूप्स हैव टारगेटेड हार्ट ऑफ खरसन सिटी। पहले तो उन्होंने क्या किया कि सिटीज के जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इस ठंडी के महीने में, ग्रिड्स को उन्होंने अटैक किया, एंड नाउ द अटैक शेलिंग इज कंटिन्यूइंग, फाइन। द नेक्स्ट इज EU स्ट्राइक्स डील टू रिफॉर्म ब्लॉक्स कार्बन मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंट है। EU member states and parliamentarians on Sunday they have announced an agreement for a major reform to the bloc's carbon market। इसका नाम क्या है, EU emissions trading system। अब इसमें होगा क्या, it will allow electricity producers and industries with higher energy demands such as steel and cement to purchase free allowances to cover carbon emission under a polluter pay principle, ठीक है। तो जो ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ठीक है ना, they have to purchase the free allowances to cover their carbon emission। So here the deal aims to accelerate emission cuts, phase out free allowances to industries and target fuel emission from the building and road transport sector which is the polluting sector। अब ये EU ने इसको क्यों निकाला है, because the deal means emissions in the ETS sector। ETS मतलब emission trade system जहाँ पे लागू होगा, ठीक है ना, they are to be cut by 62% by 2030 based on 2005 levels। Then again a one liner, द वेटिकन। वेटिकन का मतलब, यहाँ पे वेटिकन का मतलब क्या है, जो चर्च का सबसे हाईएस्ट प्लेस होता है, ठीक है। द वेटिकन हैज डिफ्रॉग्ड एन एंटी अबॉर्शन US priest फ्रैंक पैवोन फॉर व्हाट ही सेड वाज ब्लास्फेमस कम्युनिकेशन ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज परसिस्टेंट डिसोबीडियंस ऑफ हिज बाइशॉप, ओके। तो यहाँ पे ये नाम इम्पोर्टेंट है। नाउ अकॉर्डिंग विद दिस थिंग कुछ अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, देखिए। लियोनेल मेसी, ओके, ही हैज वन द गोल्डन बॉल फॉर द बेस्ट प्लेयर आफ्टर लीडिंग अर्जेंटीना टू ग्लोरी ऑन संडे। तो लियोनेल मेसी नाउ ही हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन दिस अवार्ड ट्वाइस। अर्लियर ही हैड वन दिस अवार्ड इन 2014। उसके बाद गोल्डन ग्लोव फॉर द वर्ल्ड कप किसको मिला है, तो अर्जेंटीना के गोलकीपर इमैलियानो मार्टिनेज को मिला हुआ है, ओके। देन गोल्डन बूट फॉर बीइंग द टॉप स्कोरर इन द वर्ल्ड कप
So it has gone to French forward Kylian Mbappe. The next is proud moment. So the Indian hockey team, they celebrate after defeating host Spain 1-0 in the final match to clinch inaugural International Hockey Federation Women's National Cup in Valencia in Spain. Okay, so this one liner is also important. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.